सतगुर खेमा ताणिया जोग जूथ समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे इहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास पातशाह महाराज की वडियाई करन तो पहला आ पानी वाले भरा नूं बेनती है भी कृपा करके तरस कर जिन्ना चिर मैं कथा करनी ये कम नहीं चलना। मैं हुण इसे गल ते कथा करदे भी मैनूं इतराज की तुसीं कह सकते भी ज्ञानी जी तुहानूं की इतराज है। मैं इस गल का पहला निर्णय करा कि मैनूं इतराज क्यों है। मेरी खुशकिस्मती कि मैनूं एक बाणी पढ़न वाली मां मिल गई। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ कि मेरे चाचे ने गुरमत की विद्या दे के चंडिया और जिवें चंडिया जाता तो रंबा तिखा हो जाता है। ये मैं गल तां कि भी लोग कहते हैं भाई जसवंत सिंह बड़ा कौड़ा है। दसम पातशाह के बचन ने एक चित जे एक क्षण त्यायो काल फास के बीज नायो। ये मेरे बचन नहीं गुरु कलगीधर दे ग्रंथों के मुताबिक शिवजी महाराज 88,000 वरा समाधि ला सकते हैं। ये लिखा जी ग्रंथों कि शिवजी महाराज 88,000 वरा समाधि ला सकते हैं। तो समय की वंड मैं पढ़ी भी जो त्रेता का युग है ना ਉਹਦੀ उम्र 17,68,000 वरा है। त्रेते की उम्र 12,96,000 वरा है। द्वापर की उम्र 8,64,000 वरा है। तो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल लिखी हुई है। इन्हां चार युगों के समय नूं इकट्ठिया किया जाए तो चौंकड़ी बनती है। लम्मा समा लोगों ने समाधियां लाइया पर गल ना बनी। एक बाजा वाला बापू जिहड़ा कहंदा मैं गारंटी देना भी सारी जिंदगी दे विच किते एक छिन भी जुड़ जाए ना ये मेरी गल नहीं कलगीधर बापू की गारंटी है। कहंदे जे सारी जिंदगी च किते एक छिन भी जुड़ जाए तू जमा की फांसी विच नहीं आएगा। बड़ा दुख हुंदा है असीं केवल खाण पीण तक सौण तक सीमित हाँ। जिहड़े आपां बैठे आ ना हो सकता आप 3 घंटे बैठे रहिए तो मन ना जुड़े। मैं बेनती की भी मेरी माँ बहुत बाणी पढ़ती सी
ਉਹਦੇ मैं कुख च रहा, मेरे कर्म चंगे भी बाणी पढ़न वाली माँ दे मैं पेट च रहा। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ 74 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਥਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਬੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਹੋ ਕੋ ਪਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਭੋਲੇ ਸਨ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਮਲਿਓ ਕਦੇ ਸਵਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੀਏ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਕਰੀਏ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਆਨ ਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚੋਂ ਪਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚੋਂ ਪਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਵੇਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੁੜਨਗੇ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਿੱਟ ਹੈ? ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟ ਫਸੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਫਸਿਆ। ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ।
आवाज़ तो पाप हुक्मनामा लेना करो। उत्थे इतिहास लिखिया भी गुरु अर्जन देव आप नीवें थां ते बैठे, बाबा बुढ़ा साहब जी सतगुरु पातशाह की ताबिया च बैठे, हुक्मनामा लिया, बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज़ सुने सा पंथ, ले आवाज़ बुढ़ा ता बोला, अदब साथ ग्रंथ को खोला। बड़े अदब ते सत्कार नाल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का प्रकाश होया। पहला हुक्मनामा आया कि संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। हुक्मनामे तो बाद गुरु सिखा ने गुरु पंचम पातशाह नूं बेनती की, महाराज तुहानूं लोकी रब करके मनते हैं, धर्मां दा मुतालिया करो, आपां तां अपना धर्म नहीं पढ़ते, दूजे धर्म की पढ़ने ने। मैं ईसाई धर्म की बहुत डंगियाई नाल पढ़ाई की है, तो शायद तुहानूं पता भी होवे मेरे ते ईसाइयां ने परचा भी कराया 295 का। दूजे धर्मां नूं पढ़ीए तो अपने धर्म नूं मुतालिया करिए भी साडे धर्म विच की गुण ने, की वाधा है। ब्रह्मा दे 7 अवतारां का जिक्र कलगीधर पातशाह ने किया है, शिवजी के 2 अवतारां का जिक्र किया कलगीधर बापू ने, विष्णु के 24 अवतारां का जिक्र किया है। लेकिन जे रब का अवतार है तो केवल गुरु अर्जन देव महाराज। शिवजी के अवतार भी हैं, ब्रह्मा के अवतार भी हैं, पर रब का अवतार केवल ते केवल गुरु अर्जन देव। ध्यान दिया जे आप पढ़ते गुरु अर्जन प्रतख हर, ये नहीं भी गुरु अर्जन देव रब वर्गे ने, पाठ कहते गुरु अर्जन देव खुद रब हैं। गुरु अर्जन प्रतख हर, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जेड़ा धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह का ध्यान धर लेगा ना, उन्होंने मुड़ के माँ के गर्भ च नहीं आना पाएगा। इन्नी सत्या उन्हां च। वो नीवीं थां ते बैठे ते सिखां ने आख्या भी पातशाह तुसीं एडे महान साडे गुरु ते आप नीवीं थां ते क्यों बैठे जे? जिहड़े कुर्सियां ढाह के बहिंदे हो, कृपा करके मेरी बेनती नूं ध्यान नाल सुन। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहंदे मोरे स्वरूप ते जां ते है दीर्घ, कहते मेरे नालों गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह वड्डा है। मोरे स्वरूप ते जां ते है दीर्घ, साहिब जान अदायब करे हैं, ग्रंथ हृदा गुर का ये जानो, पूर्ण है सब कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह साडा हिरदा है, ये सदीवी तौर ते रहणगे, पर सतगुर केर शरीर है जो सर्व समय सर्व थाना दर्शाए है। जेड़ी गुरु की देह है वो हर थां ते हर मौके ते नहीं जा सकती, लेकिन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह इहो जे गुरु ने जेड़े एक मौके ते लखां थावां ते जा सकते हैं। आपां कखां वाली गुरु के चरणों च बैठे हाँ, हरमंदर साहब गुरु के सिख गुरु के चरणों च बैठे ने, तरन ताਰਨ गुरु के सिख गुरु के चरणों च बैठे ने, अमरीका विच गुरु के सिख गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह के चरणों च बैठे ने। भला देहधारी किते पहुँचेगा? मैं खास करके जिथे भी जाना मैं अपनियां धीआं भैणां बच्चियां नूं बेनती करदा, बच्चिओ बंदियां तो बचो। बंदा काम दा पुतला है, जेड़ा काम दा पुतला वो काम तो रहत नहीं, जेड़ा बनिया काम तो है वो काम तो रहत किवें है? किसी बंदे कोल जाओगियां लोग तुहानूं उंगलां कर करके छज विच पा के छट्टणगे। फलाने साध कोल जांदी है, फलाने बाबे कोल जांदी, भावें बाबा तुहानूं धी करके जाने, पर मन का अतबार कोई नहीं, मन कदों डोल जाए। मैं अपने चाचे जी को एक प्रसंग सुनिया सी मन डोलण का। एक वेसवा
संतां नूं कहिंदी बाबा जी मेरे कुत्ते दी पूछ चंगी कि तुहाडी दुहाड़ी चंगी। महात्मा जवाब नहीं देंदे। अंतिम समा आया, कहिंदे बीबी नूं बुला के लियाओ, ते बुला के लियांदा ते कहण लगे धीए मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते दी पूछ नालों 100 गुणा चंगी। बेसवा कहंदी बाबा जी पहलां तां क्या नहीं, हुण क्यों कहा है? महापुरुषां ने पंक्ति पढ़ी, अजो सुनाओ समुंदर में क्या जाना क्या है। जिन्ना चिर बेड़ी समुंदर दे विच है ना, पता नहीं कदों डुब जाए। इस करके बंदे ते इतबार ना करिया जे। बंदा मंगता है, मैं तुहाडे कोल आया ना, भावें गुठ वाली पग बधी ते भावें गोल, जे तां रुपये तुसीं दिते बहुते ते मैं बाहर जाके कहना भी बड़े गुरमुख सन। ये साडी बंदियां दी हालत जे बहुते रुपये दिते ते गुरमुख, जे ना दिते ते मनमुख। जेड़ा खुद मंगता है वो तुहानू की देगा? जेड़ा आप तुहाडियां जेबां वल झाकदा, जेड़ा तुहाडे तो मंगदा है, वो तुहानू की देगा? एक ये दाता जे जेड़ा मंगदा नहीं। दूजे पासे आपां जिन्ने बैठे हैं वड्डे छोटे, आपां मौत दा खाना है। ये पता नहीं मौत सानू कदों लै जे, ये सानू अतबार नहीं। मैं बाबे बुढ़े के जीवन में पढ़िया, जदों गुरु नानक पातशाह नूं बाबा बुढ़ा जी मिले ने ना, तो सतगुरु पातशाह कहण लगे भी भाई बूढ़िया गल्लां बड़ियां तू ज्ञान दियां करदा, ते गल की है? कहंदा जी एक दिन मैं अपने बाप की उंगल फड़ के खेतों नूं गया, ते हाकमां ने साडी फसल विच पशु वाड़ दिते, ते मैं आख्या भी बापू मोड़दा क्यों नहीं? वो कहंदा पुत्तर डाढ़ियां नाल जोर नहीं, ये कच्ची वढ़ लैण, ये पक्की वढ़ लैण। ते गुरु की बाणी च लिखिया जे हैरे नहीं ने डडरी, पक्की वढ़ण हार, लै लै दात पहुंचिया, लावे कर तैयार। जां होआ हुक्म करसान दा तां लुण मिणिया खतार। आपां मालक दी खेतियां, पता नहीं उन्हें सानू कदों वढ़ लैणा है। बाकी किन्नी भी हो जाए, बाणी कहंदी अंत तौ मरना। जे 100 तो वध भी हो जाएंगे ना, मरना फिर भी पेगा। बाबियां दियां बरसियां, बाबियां दे दशहरे, बाबियां दे अंदर काम, बाबियां दे अंदर लोभ, बाबियां दे अंदर क्रोध। पर ऐस बापू दे अंदर एक ऐब नहीं जे, ना ये मरे ना होवे सोग, देंदा रहे ना चूके भोग। गुण एहो होर ना ही कोए, ना कोआ ना कोए। तुहाडे चों कोई मूँह पाटा ये भी गल कह सकता भी जी ज्ञानी जी जे तुहाडा गुरु मरदा नहीं, जेड़ा बरगाड़ी च रौला पाया, तुसीं इन्हां रौला क्यों पाउंदे हो? तुसीं कहंदे साडा गुरु नहीं मरदा, ते उत्थे इन्हां तुसीं धभान क्यों चुक्किया? तुसीं क्यों कहंदे फड़दे नहीं? ਉਹਦਾ जवाब यह मेरियां ਧੀਆਂ बच्चियां बैठियां ने, किसी की कोई चुन्नी नूं खिच ते असीं कहने दी बेइज्जती कीती है, किसी की कोई पग नूं हथ ला दे वो कहंदा मेरी इज्जत लह गई है। इस करके जिहड़े कागज ने ये गुरु का चोला है, जिन्हें साडे गुरु के चोले नूं खिंचा वो साडा की लगता है? साडा गुरु कागज नहीं, साडा गुरु है शब्द। शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा, बिन शब्दे जग बुरानंग। शब्द ही गुरु, शब्द ही पीर, ते शब्द तो बिना दुनिया बोरी हुई फिरदी है। इत्थे जिहड़े देहधारियां दे चेले चाटे होणगे ना, 2-4, उन्होंने कहना भी ज्ञानी जी असीं भी शब्द लैके आए सां, तुसीं किवें कंडैम करदे? साडा बाबा भी शब्द दिंदा है, लेकिन शब्द शब्द सिर्फ फर्क है। मैं अपने को कुछ कहां तो हो सकता भी तुहानूं मुआफक ना बैठे। मैं बेनती की कि मैं ईसाई धर्म की 5 साल विद्या पढ़ी है, ईसाई नहीं पुत मैं सिखां दा कटना, पर पढ़िया तां भी वेखां भी इन्हां च है की, ते मेरे गुरु की बाणी च वाधा की है। एक ईसाई भरा उहदा नाम आल्डर नाइनटाइन भी है, वो कहंदा दुनिया के लोगों जदों संसार में कुछ ना रहा उदों गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह रहणगे। ये मैं गल हज़ारां थावां ते कही, ते मंजी साहब तो रोजाना कहना
ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਮਾਮ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਸੱਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਇਹ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਫੂਕ ਮਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੂਕ ਮਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮਨ ਹਾਰੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ ਨਾ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਤੇਰਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 1226 ਅੰਗ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕਦਮ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋਨਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕਾਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਜੰਤ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਭੜਕੇ ਪੁੱਤਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਦੇ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਢਕੌਂਜਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚਪੋਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਮਾਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਾਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ,
जे वड्डे बन के आवांगे तो मारे जावांगे। बस इन्नी गल ही पल्ले बन लो तो मेरा आया सफला। निमाणे बन के आओगे तो झोड़ियां भर के जाओगे, वड्डे बन के आओगे तो खुआर होगे। गुरु कृपा करे असीं गुरु दे कर निमाणे ते नताणे बन के आईए। जिहड़ी गुरु रामदास पातशाह की कथा है ना, वो है ही निमाणे ते नताणे की कथा। गुरु रामदास पातशाह महाराज का अवतार लाहौर चूना मंडी में होया। मैं समय के मुताबिक पुछोकड़ बादल करा। असी गुरबाणी पढ़ने खिनमै राव रंग को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे यह तो को बभारे। जेड़ा रब है ना, वो राजे नूं रंक बना देंदा है, रंकां नूं राजे बना देंदा है। जेड़े खरे ने जेड़े खाली ने भर जाते ने, जेड़े भरे ने खाली हो जाते हैं। आपां तां सिख बाणी ने सुनते गल्लां भावें जिन्नियां मर्जी करी चलीए, इतिहास पढ़ीदा ते मन हैरान हो जाता है। हिंदुस्तान का मुसलमान बादशाह आसा दी वार का कीर्तन सुनता है। हिंदुस्तान का बादशाह मुसलमान है, लेकिन उन्हें आसा दी वार सुनी ते आसा दी वार विच पंक्तियां आईयां, नज़र अपुठी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा, दर मंगन पिख न पाएंदा। रब्बा जे तेरी निगाह पुठी हो जाए, बादशाह नूं भीख मंगनी पैंदी है, खैर कोई नहीं जमाउंदा। तुसीं हैरान हो जाओगे। मैं किसी जमाने तुहाडे इलाके 4 दिन भुखा रहा, रोटी नहीं मैनूं किसे खुआई। मलोड़ के इलाके च वो तो पुरानियां गल्लां ने ना। मैं 4 दिन रहा तो डरते ने किसी रोटी नहीं खुआई भी मारे ना जाइए। ये मेरी अपनी हड्ड बीती जे, नज़र बदल गई ना उसकी। औरंगजेब बादशाह दे पुत ने उन्होंने फड़ लिया। जदों आगरे नूं लैके चले तो उहदियां अखां दे विच उहने सलाइयां फिरदे। पुत ने प्यो दीयां अखां कढ़ दित्तियां, पुत ने प्यो दे लत्तां बन दित्तियां, गिट्टे बन दिते, हथ बन दिते ते नाले कहण लगा भी मेरे प्यो नूं पानी दी घुट नहीं जे देनी। भुख तां सारे नूं लगदी है ना। आपां पढ़दे फरीदा मौतों भुख बुरी, रातीं सुते खा के दिने फेर खड़ीए। कहावत है चेत दा महीना, छोलियां दी वट दे उपर मुलाजमां ने एक दरख्त के थले बादशाह नूं बिठाया तो आप पानी धानी पीण लग पे। आप भली प्रकार जानते, क्योंकि तुहाडे इलाके च वैसे छोले ज़्यादा हुंदे ने, तुहानूं वध पता है। छोलियां दे पत्तियां नूं कहिंदे ने पल्ली। ते शाहजहान उन्हां नूं कहण लगा भी मैनूं माड़ी जी पल्ली तोड़ के दो, मैं पेट नूं झुड़का दे लां। उहदे मुलाजम कहण लगे बादशाह तेरे पुत दी आग्या नहीं। उत्थे इतिहास लिखिया कि शाहजहान बादशाह गोडियां दे परने हो करके उन्हें छोलियां दे पत्ते खाते ते कहण लगा बाबा नानक तेरी बाणी सच्ची। महाराणी जिंद कौर दा प्रसंग पढ़ी दा आपां सारे सिखां कल दियां गल्लां ने। कदे कोहनूर हीरा अपनी डोले ते बन्हदी सी, जदों चनार दे किले चों निकली ना ते मंदिर च गई ते पुजारी नूं कहण लगी भी बाबा जी मैनूं कोई दो। ते कहण लगे बीबी इत्थे गुरुद्वारा नहीं, इत्थे भांडा अपना लैना पएगा। महाराणी जिंद कौर ने अपना कपड़ा अगे कीता, पुजारी ने चौलों की पछ पुछ जिहड़ी आपां पिछ हुंदी है वो बीबी दे पल्ले च पाई, पिछ थल्ले वागी ते बाकी दा कपड़ा पूंझ के राणी जिंद कौर अगे चली गई। रब तो डरना करिए, ये कल दियां गल्लां हन। महाराजे रणजीत सिंह दी राणी जिंद कौर मंदिर च गई तो उन्होंने किसी रोटी नहीं देती। चौलों की पिछ नूं अपने दुपट्टे ते चट के आख्या ये पी दात तेरी दतार, ये वैगरू ये तेरा भाणा। ये नाल मैं एक विशेष तौर पर अपनियां धीआं भैणां नूं बेनती कर जा। मेरा जिला लाहौर ते पट्टी तहसील है। हुण समय नाल असीं सानूं तरन तारण जिला बना दिता है।
खेमकरन मेरे पिंड तो लागे सब तहसील बन गई। कसूर शहर मेरे पिंड तो 6 मील है। लाहौर ते पट्टी दी जेल विच मीर मन्नू ने बीबियां नूं कैद किया, सिख बीबियां नूं। 4 बीबियां नूं 1 रोटी मिलती। तुसां कदे शायद अरदास से सुनिया होवेगा, जिन्हां बीबियां ने खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया। खन्नी दा भावदा रोटी का चौथा हिस्सा। 4 बीबियां नूं 1 रोटी मिलती है, 1 पानी का प्याला मिलता है, ते 20 सिर, सवा मन जिहड़ा ना 20 सिरदाने। आप मन 2 तरह का होंदा, कच्चा ते पक्का। अजकल की पीढ़ी नूं पता नहीं, क्योंकि 16 सिर का मन कच्चा होंदा ते 40 का पक्का। उन्हां बीबियां नूं 20 सिरदाने मिलते हैं, ते बीबियां चक्की पीसदियां ने। उन्हां दे बच्चियां दे टोटे करके गलां विच हार पवाए, ते बीबियां ने आख्या सी, कलगीधर बापू ये भी तेरी दात है। केत्या दूख भू सदमार, ये भी दात तेरी दातार। समय दा हाकम कहंदा, भोलियो बीबियो तुहाडा पति शहीद हो गया है, तुसीं पुੱਤ मरवा लए ने, बेगमां बन जाओ। कहंदियां भरावा असीं तां तुहाडा देण नहीं दे सकदियां। हाकम बड़ा हैरान भी इन्हां नूं इन्ना तंग कीता, ते कहंदी भरावा तेरा देण नहीं दे सकदियां। बीबी क्यों आख्या ही? कहंदी अगे मैं शहीदी पत्नी सां, हुण तूं मेरे पुੱਤ नूं शहीद कीता, मैं शहीदी मां बन गई, मेरी कुक सफली हो गई। यह है साडा मूल, यह है साडा मुੱਢ। इसे तरह का इतिहास है गुरु रामदास पातशाह महाराज का। धन गुरु रामदास पातशाह महाराज के वडेरे जिहड़े ने ना, वो रामचंद्र की संतान विचों हैं। 10वें पातशाह ने 10वें ग्रंथ बहुत वेरवा दिता बचित्र नाटक विच। रामचंद्र के 2 बेटे सन, वड्डा लहू ते छोटा कुशू। लहू ने लाहौर वसाया, कुशू ने कसूर वसाया। ते समय दे नाल जिहड़े आपां चाचे चाते दे भरा ना, वो कई बार शरीक के बन करके ते पैड़ी तो भरा नूं भरा मार दिंदा है। इसे तरह समय नाल पीढ़ियां च ईरखा जागी। कुशू की औलाद ने लहू की औलाद नूं पिंडों कढ़ दिता। जी भ्याणे धक्के खांदे खांदे सनौड़ देश में गए, जिन्होंने अजकल महाराष्ट्र कहते हैं ना, इसका पुराना नाम सनौड़ देश है। उस मुल्क में गए, इन्हां दा खानदान वेख के ते राजे ने अपनी धी का रिश्ता कर दिता। उहदे चों जिहड़ा बच्चा पैदा होया, उहदा नाम रखिया सोढी राय। जे कोई पुछे ना भी सोढी कित्थों चले ने, तो इहदा इतिहास है भी जिहड़े लहू की औलाद सनौड़ देश में गई, उत्थों दे राजे ने अपनी बेटी का रिश्ता लहू की औलाद नाल कीता, ते जिहड़ा उहदे तों बच्चा पैदा होया, उहदा नाम रखिया गया सोढी राय। समय के प्रभाव नाल अपने नानकियां की मद लै करके उन्हें हमला किया, फिर शरीकां उपर। हुण कुशू की औलाद नूं उन्हें लाहौरों कढ़ दिता। एक मैं लफ्ज रोजाना स्टेज पर बोलदा, क्योंकि साडे जीवन का अंग है। जे सके शरीक बन जाण, ये तो बड़ा वैरी कोई नहीं। ये अपने सारे तुसीं आले दुआले अपने घरां च वेखो, जे सके शरीक बन जाण, ये तो बड़ा वैरी कोई नहीं। ते जे शरीक सके बन जाण, ते ये तो वड्डियां बाहां भी कोई नहीं। लहू की औलाद ने कुशू की औलाद नूं कढ़ दिता। जदों बंदा दुखी होवे ना, उदों रब का चेता बड़ा आउंदा जे। इसे करके बाणी च लिखिया है, दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम न होई। दुख नूं दारू तां कहा कि दुख के मौके ते रब चेते आउंदा है। दूजे पासे बाणी च भी लिखिया, जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना, साग भी भज खले, सबो भजे आसरा चूके सब असराओ, चेत आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तती वाओ। जे किते उदों भी वाहिगुरू चेत आ जाए, तो गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहते तत्ती वाह नहीं जे लगती।
ਅੱਜ ਦਿਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗਾਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਪੁਰਪੜੀ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 84 ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਔਰ 4 ਮੌਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਆਪ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਗਾ ਚਾਚਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਹੈ। ਸਗਾ ਚਾਚਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਖੂਨ ਪਗਰਿਆ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਜੇ ਥਿੱਕਰ ਦੈਨ ਵਾਟਰ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਆਏ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ 3 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੋਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਕਥਾ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੇਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋਗੇ। ਉਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਠੱਕਰ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਠੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਠੱਕਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਹਰਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦਇਆ ਕੌਰ। ਉਸ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 1634 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਣਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਦਾਦਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਖਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਤੇ ਦੋਹਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੱਧੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੜਨ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੋਂ ਦੋਹਤੇ ਦੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਬੇ
तू घर दी मालक है, मंजे ते बैठी खा, पर असीं दोते ते दोतियां नहीं खवा सकते। ਜਿਹੜੇ माँ प्यो ਨੂੰ खा गए भला नानकिਆਂ ਤੇ खैर करनगे। पर उस मामी ਨੂੰ की पता ਜਿਹੜੇ रामदास वास्ते मामी ने बूहा बंद कर लिया, उस गुरु रामदास का बूहा संसार ਲਈ अठे पर खुला रहेगा। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ वाले हाँ, भावें आप 10 वजे दरवाजा बंद करिए कर लेने आ, लेकिन गुरु रामदास का दर अठे पर खुला रहिंदा, वो बंद नहीं हुंदा। गवांढ एक साडे बड़ी कीमती गल हुंदी सी, अज आप सारी दूर हो गई। हमसाए माँ प्यो जाए, हमसाए कहंदे ने गुआंढियां नूं। एक आपां पंजाबी च भी बोलते हैं, कुड़म कपत्ता होवे पर गुआंढ कपत्ता ना होवे, क्योंकि कुड़मा नाल तां कदे वाह पैना ते गुआंढ नाल रोजाना। जदों गुरु रामदास पातशाह दी मामी ने गल कही ना, ते गुरु अमरदास पातशाह दा गुआंढ घर सी, वो गुरु रामदास पातशाह दी नानी नूं कहण लगी, भाभी साडा जवाई तुर गया, साडी धी तुर गई, असीं वो लिया नहीं सकते, पर साडे ये भी कुछ लगते ने, जिन्ना चिर मैं जिउना तू इन्हां दी चिंता ना करी, मैनू दिने आवाज़ मारी, रात नूं आवाज़ मारी, मैं सेवा करांगा। ये गल गुरु अमरदास महाराज ने गुरु रामदास पातशाह महाराज की नानी नूं कही। 7 साल की उम्र च आए, 9 साल गुरु रामदास ने अपनी भैन ते भरा नूं पालन वास्ते 9 साल अपने नानकिਆਂ ਦੇ पिंड घुंगणियां वेचियां। 9 साल नानकिਆਂ ਦੇ पिंड घुंगणियां वेचियां। गुरु अमरदास पातशाह नूं गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने आग्या की भी गोंदवाल नगर वसाओ। गुरु अमरदास पातशाह ने अपने जिहड़े वाकफसान जां नगर वाले से उन्होंने प्रेरणा दी भी वो भी गोंदवाल आउण। उसे समय के दरम्यान गुरु रामदास पातशाह भी गोंदवाल चले गए, तो पेड़ दियां लोड़ां वास्ते कोई ना कोई तो करना ही पेगा ना। जिहड़े नानके घुंगणियां वेचदे सन, अज वो गोविंदवाल घुंगणियां वेचण लग पए। 2 साल होर लगे। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज के महल जिन्हों आप धर्म पत्नी कह देने आ, वो गुरु अमरदास पातशाह नूं कहण लगे, स्वामी जी अपनी भानी विआह दे लायक हुई है, तो ये वास्ते आपां नूं कोई वर घर लभना चाहिए। तो गुरु अमरदास पातशाह कहण लगे, मनसा देवी ਧੀਆਂ ਦੇ बारे मावां नूं ज़्यादा पता हुंदा है, थोड़ा जिहा तुसीं दसो भी काका आपां नूं किहो जिहा चाहीदा। ते माता मनसा देवी ने सुभाविक वचन कीते, स्वामी जी जिहड़ा लाहौर तो रामदास आया ना, आपां नूं ओहो जिहा काका भानी लई मिल जे ते बहुत वधिया रहेगा। ते गुरु अमरदास पातशाह कहण लगे, मनसा देवी तू तो मसला ही हल कर दिता है भी लाहौर वाला रामदास वर्गा अपनी भानी लई लड़का चाहिए है, ते रामदास वर्गा रामदास ही है। वेखो गुरु अमरदास पातशाह ने यह नहीं वेख्या भी मेरे जवाई नूं मुरब्बे नहीं आउंदे, ये नहीं वेख्या कि मेरा जवाई घुंगणियां वेचदा है। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने रहमत की, क्योंकि गुरु है ही निमाणियां दा मान। 18 साल की उम्र सी गुरु रामदास पातशाह की, ते 18 साल की उम्र सी माँ भानी की। बहुत उम्र का मेल खांदा है। माता भानी का जन्म भी 1634 में ही होया, कुछ महीनों का फर्क तो हो सकता है। विआह होया, जदों विआह तो बाद आप सारे जने अपने धीआं नूं यथा योग दाज देने आ। गुरु अमरदास पातशाह कहने लगे, पुत्रा तैनूं धी दे के पुत बनाया, आप जवाई नूं कहने धी दे के पुत बनाउणा। तैनूं धी दे के पुत बनाया, संगी ना मैनूं तेरियां लोड़ां दा पता है, जो मंगना मंग। ते आपां तां कहने फलानी गड्डी फारचूनर दे दे, नोवा ही दे छड्डो भलिओ। पर की मंगिया गुरु अमरदास पातशाह को गुरु रामदास ने,
ये मंगया करो। हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास, ये दाज मंगया जे गुरु रामदास ने गुरु अमरदास पातशाह को। हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रकाश। तू मेरा गुरु है, जे तू आख्या ना मंगण दी गल ते मेरे ते मेहर कर, मेरे अंदर नाम दा चानन कर दे। गुरु अमरदास दिलों दियां जानन वाले ने कहने लगे, पुत्र जात दा पुत संग गया, मैं तेनू ये कहा भी तू मेरा पुत्र है, मैं तेनू धी दिती है, ते गल खुल के क्यों नहीं करदा। ते उन्होंने बयान नहीं बदलिया, वो कहते मेरे गुरदेव मेरे मीत मित्र, मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रकाश, मेरी होर कोई नहीं मंग, मैनू नाम झोली पा। मैं गुरु रामदास पातशाह महाराज की कथा करन दे नाल नाल मां भानी का जिक्र भी करा। मैं मंजी साहब तो बहुत मेरा जिक्र करदा भी गुरु साहिबां दे नाल मैं 4 सिख हस्तियां का मेरे मन में बहुत रिकार्ड है सारियां दा प्रचार का विशेष करके। किहड़ियां किहड़ियां? एक भाई मरदाना जी, एक बाबा बुढ़ा जी, एक बेबे नानकी जी, एक माता भानी जी। कारण भाई मरदाने का सत्कार मैं इस करके करना भी उन्हें 52 साल कीर्तन किया। उन्हें गुरु ने यह नहीं आख्या भी आसा दी वार दे किन्ने देगा। आप तो कहने भी आह दे दे, असीं जो तुहाडे कोल आउणे ना असीं टोके आउंदे जे भई ने जे दिओगे तो आवांगे, नहीं तबीयत खराब होनी साडी, तुसीं तुहानूं ज्ञानी साडे कथा करना तो भेटा दसो, असीं कहने इन्नी तो जे सैट बह गई तो आवांगे, तो नहीं तो कहांगे तबीयत खराब हो गई है, नहीं तो गड्डी पंचर हो रहेगी। पर भाई मरदाने ने 52 साल कीर्तन किया है, गुरुओं को पदार्थ नहीं मंगे, और उसका रिजल्ट की मिलिया? महाराज का प्रकाश ही भ्यागड़ा राह कढ़ो आउंदा मरदाना पहला पहला अंग केवल ते केवल पहले पातशाह नाल लगदा है। मरदाने नाल क्यों लगा? मरदाने ने गुरु को केवल गुरु नूं मंगया, पदार्थ नहीं मंगे। बेबे नानकी गुरु नानक पातशाह की वड्डी भैन है, 5 साल वड्डी। जो मैं बेबे नानकी का नाम लिया मैनूं किसी पता नहीं, मैनूं बड़ा आनंद आता, मेरे मन च टका बड़ा आता है, मेरी बड़ी श्रद्धा बेबे नानकी ते जो सच जाने मैं तुहानूं अपनी एक वीक पॉइंट देण लगा, जे किते लोड़ पवे ना किसी गल दी ते मैं कहना भूआ काम करा दे, बेबे नानकी नूं भूआ कहना, क्योंकि गुरु नानक साडे बाप ने ते उन्हां दी भैन भूआ। मेरा कोई भी काम अड़े तो मैं बेबे नानकी नूं कहना भी भूआ जे पुत नकमा भी होए तो भूआ नूं आखीदा भी बापू नूं कहे मैनूं फलानी चीज़ दे दे। मैं मेरी जिंदगी घटना वापरी जिन्हें मैनूं झंजोड़िया वो ये है, असीं सुल्तानपुर गए संत बाबा करतार सिंह होरां दे नाल, ते मैं जाप साहब कंठ ना होवे बड़ा अड़िया ते लागे कि पिंड उत्थे मैं गए ते झोने की वड़ ते तुरिया जावां ते मैं आख्या भी भूआ जे किते धी पुत नकम्मा ते भूआ तो बड़ी सिफारिश करदी ते मेरी सिफारिश तक कर दे। बेबे नानकी दे अगे अरदास कीती, मैनूं जाप साहब कंठ हो गया। बेबे नानकी वो हस्ती है गुरु नानक पातशाह नूं चेते करदी भी मेरा भरा फुलका फुलिया ते किते आवे खावे, ते बाबा नानक कहंदा मरदाने बेबे ने याद किया, कुंडा खड़काया ते कहण लगी किते लागे हो गए, किन्नी कमाई होएगी उसकी। गुरु नानक पातशाह कहंदे बेबे मैं तो तेथों दूर ही नहीं कदे गया, मैं तो इथों दूर नहीं जाता। होया कि गुरु नानक पातशाह बेबे नानकी दे पैरां ते हथ रखण लगे। बाबा नानक जी नूं दुनिया झुकदी है, वो बेबे नानक के पैरों से हथ रखता। बेबे नानकी ने गुरु नानक पातशाह के हाथ फड़ के ते मत्था टेक दिता। गुरु नानक पातशाह कहने लगे बेबे मैं तेरे को ताइयों नहीं आता भी तू उल्टा काम करदी, तू मेरी वड्डी भैन, तू मैनूं चुक के खड़ाउंदी रही है ते तू मैनूं मत्था टेके। नमस्कार करदा बेबे नानकी की सोच नूं, कहंदी जे लोकां दे वीरां वर्गा वीर होवे तो मैं 100 वार पैरीं हथ लवाना, मैं भागां वाली हाँ जिहदा भरा रब है। इन्नी उच्ची सोच सी बेबे नानकी दी। माता भानी की मैं गल कर लगा, गुरु अमरदास पातशाह महाराज चबारे तो थले उतरे ने,
उतर के कहन लगे, भानी जे तेरे सिर दा साईं रामदास गुजर जाए तो तू की करे। ये आप सारे जने अपने अंदर वेखीए भी आपां नूं कोई कह दे भी तेरा पुत मर जाए या तेरा प्यो मर जाए, एकदम आपां नूं कहे तो आपां तां बौंदल जावांगे। ये गल्लां कहणियां बड़ियां सौखियां दे, पर जदों नाल वापरदी है ना उदों ज्ञान फेल हो जाता। मैं किसी पिंड कथा करन गया तो मैं भाई अमरीक सिंह की गल की, मैं कथा दे करद्या करद्या रो पिया। तो एक बजुर्ग मैनूं कहंदा भी ज्ञानी जी हुण तुसीं बजुर्ग हो गए हो तो तुसीं स्टेज ते रोंदे चंगे नहीं लगते। मैं क्या अमरीक सिंह मेरा भरा सी, मोह सी मैनूं, तो मैं क्या भरा दा मोह आ गया, मैं अपने ते काबू नहीं पा सकिया। बजुर्गा जी तेरा भरा मरेगा तू ना रोई। यो आखेंगा ना विज्ञानी फेल हो गया, मैं फेल हो गया। मेरा भरा सी, मेरा खून सी, मैनू मोह जागया, मैं अपने आप ते काबू नहीं पा सकिया। जिदन तेरा मरेगा ना तू अपने दिल नूं पक्या रखी। मेरे कहण तो भाव दूजियां नूं ज्ञान देना बड़ा सौखा, पर जो अपने नाल वापरदी उदों ज्ञान फेल हो जाता है। ये मेरी अपनी कमजोरी मैं दसी तुहानूं। दूजियां नूं बड़ा कहीदा जो मौत आपां कहने हौसला कर, दूजियां नूं हौसला देना, जे अपने हुंदी है ना उहदे नाल हौसला नहीं रहिंदा। गुरु अमरदास पातशाह मां भानी नूं कहण लगे, भानीए तेरे सिर दा साईं रामदास गुजर जाए तो तू की करेगा, तू की करेंगी। हुण एकदम किसी नूं गल कही बंदा बौंदल जाएगा ना। नमस्कार मां भानी नूं उत्थे लिखिया है बंसावली नामा, मैं ग्रंथ का नाम भी दस दियां क्योंकि कईयां ने कहना भी कित्थे लिखिया है। बंसावली नामे दे विच ते प्रिंसीपल सतवीर सिंह की पुस्तक के 171 पेज से ये दोवें गल्लां लिखियां ने। माता भानी ने अपनी नथ ला के गुरु रामदास के पैरों च रख दी। ये नथ सुहाग की उस मौके रिवाज सी, सुहागणा की नथ हुंदी सी। ते गुरु अमरदास पातशाह कहण लगे, भानीए पाला पाला धीए, मापे हमेशा धीआं नूं देंदे आए ने। तेरे पति की अज उम्र मुक चुकी सी, मैं अपनी कट के 6 साल 11 महीने ते 18 दिन उम्र तेरी झोली च पा दी। कल सवेरे असीं शरीर छड्ड जांगे ते दिनां की गिणती करनी बचिए 6 साल 11 महीने ते 18 दिन नूं तेरा पति मेरे विच फिर लीन हो जाएगा। अगले दिहाड़े धन गुरु अमरदास पातशाह ने सिख संगतां नूं इकट्ठियां करके जिहदा वेरवा असीं रामकली साध विच बाणी च पढ़ते हैं, गुरु रामदास पातशाह नूं गुरता गद्दी दे दी और अब सचखंड प्याना कर गए, ज्योति जो समा गए। गुरु अमरदास पातशाह की आग्या के मुताबिक हजूर ने अमृतसर नगर नूं वसाया, सरोवर लाया, 52 ਵੱਖ-ਵੱਖ गोतां ते जातां दे लोकां नूं वसाया। ते एक विशेष गल है, पुराने जमाने च लोग गरीबां ते छूतां नफरत करते सन। गुरु रामदास पातशाह ने उन्होंने चढ़ते पासे वाल घर बना के दिते। वो अज भी हैं जिहड़े गरीब लोग ने ना, उन्होंने चढ़ते पासे घर बना के दिते। दरबार साहब के लागे भावें वो गरीब समय के नाल उत्थों निकलते जाते, पर अज भी कुछ वसते हैं। कहण दा भाव गुरु रामदास निमाणियां दा मान, गुरु अमरदास जिन्हां दा नहीं उन्हां दा गुरु रामदास। जदों सेवा आरंभ हो गई ना, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ आए। गुजरात तो एक सोमे नाम का गरीब, वो घुंगणियां बेचण का काम करता। वो सरोवर के कंढे ते घुंगणियां बेचता, घुंगणियां। गुरु रामदास पातशाह ते कहण लगे, सोमिया अज किन्ने वटे? कहंदा जी 2 पैसे वटे, कहंदे सानू दे दिते। अगले दिहाड़े कहण लगे, सोमिया अज किन्ने वटे? कहण लगा जी बरकतां पा दित्तियां जी महाराज, कल इन्ने टाइम तक 2 पैसे वटे सन, अज 5 वटे ने 5। हजूर कहंदे गुरमुखा दे दे, किसी संगत दे विच काम आउणगे परतों वास्ते, दे दिते। पर उहदे चेहरे च मलाल नहीं आया, अदासी नहीं आए कि मैं घर नहीं जाने, मैं जी नहीं पालने। साडे वर्गा हुंदा ते मेरे तेनू कित्थों दे दियां, पहले मेरा नहीं सरदा। पंजे दे पंजे दे दिते।
ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੋਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਾਵੇ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਕਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਟੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 7 ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਮਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਈ। ਹੁਣ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨਾ ਵੇਚੀ, ਤੂੰ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੌਜ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਰਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਭਾਈ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਂਕਿਆ, ਮੈਂ ਭੌਂਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਭੌਂਕੇ ਆ ਕੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਲਓ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਜੇ, ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਦਮੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਵਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਸੀਆਂ ਧਰ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇਰਾ ਔਂਤਰ ਗਿਆ ਦਾ ਥਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਬੜਾ ਚੰਦਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਰ ਖੇਡੇ ਬਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਛਤਰਪਤ ਉਸ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੰਗਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 3 ਮਹਿਲ ਸਨ ਤੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹਿਲ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਔਰਤ ਇਮਾਨ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਕੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਐਬੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਵਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਰਿਆ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਧੀਆਂ 7 ਵੀ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ 7 ਧੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭੜਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ। ਮਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੇ 1 ਪੰਡ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ, 1 ਪੰਡ ਉਹਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ 4 ਪਾਸੇ ਧੂਏ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ?
प्रेमिया ने आख्या जी एक मालवे चों बजुर्ग आया है, आदम उहदा नां है, ये सारी सेवा उन्हें की, कहते बुला के लियाओ। वो बेचारा तंबू च रहिंदा सी, तंबू लाया सी अपना, बुलाया तो कहते गुरमुखा गुरु नानक के घर में किसी गल का घाटा नहीं, जो मंगना मंग। क्योंकि आप पढ़ते हैं जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुखते जो बोले इयां उआं सच होवे। गुरुदेव कहते जो मंगना मंग। अपनी वडेरी उम्र वेख के ते चिट्टा दाड़ा वेख के ते संग गया, भी उन्होंने आखना भी हुण बुढ़े बारे पुत मंगदा, पर गुरु दिलों दियां जानदा है। गुरुदेव कहन लगे बजुर्गा कोई गल नहीं भाई, काला ना पाओ, तू कल नूं सलाह करके दस दी। गुरु पढ़दे ढकदा ना, तंबू च गया, चेहरे ते बड़ा मुस्कुराहट है, रौनक है, ते घरवाली बीबी कहन लगी स्वामी जी बड़े खुश जे। कहंदा भागां वाली गल बनी सी पर संगदा संगदा रह गया। की होया? मैनूं गुरु रामदास पातशाह कहंदे जो मंगना मंग, ते कहन लगी फिर मंगिया क्यों ना? कहंदा मैं अपनी वडेरी उम्र करके चिट्टी दाड़ी करके संग गया। उंज वैसे उन्हें कहा सी भाड़ के सलाह करके दसदा, कहंदी मैं मंगांगी। दोवें पति ते पत्नी गुरु रामदास पातशाह दे हाजिर होए, ते गुरु रामदास पातशाह हस के कहन लगे बीबी तू मंगला भाई। कहन लगी महाराज शरीकां दे कढ़े आया, साड़ी दुनिया नाल सांझ पै जाए, पुत दी दात दे। ते गुरुदेव कहंदे बीबी सेवा करके लिया, पुत्तां लोकां दे घर बड़े पर तेरा पुत विशेष होएगा, विशेष। बड़ी हैरानी की गल भी पुत सारियां दे घर तेरा विशेष होएगा। तो बजुर्ग का कोई मन कमजोर जापदा इस गल नूं पढ़िया, कहंदा जी मेरे शरीक बड़े करड़े ने, किते मेरे पुत नूं मार ना देण। ते गुरु रामदास पातशाह हस के कहण लगे जिन्हें दिता वो भला मरन देगा? बीबी अपने पुत्र का नाम भाई भगतू रखी, ते मैं तेनू आख्या भी तेरा पुत्र विशेष होवेगा, वो लोकां दे पुत्रां वर्गा पुत्र नहीं, तेरा पुत ब्रह्म ज्ञानी होएगा, तेरा पुत ब्रह्म ज्ञानी होएगा, उहदा नाम भाई भगतू रखी। ते बजुर्गा तू इवें डरी जाना, शरीक मार ना देण। जिदन तेरे घर भाई भगतू का जन्म होगा, तेरे शरीक तेरे घर भेटा लैके आउणगे। ये दुनिया के इतिहास पहली गल है, जदों भाई भगतू का जन्म होया, शरीक भाई भगतू के घर पटावां लैके आए। ये गुरु रामदास पातशाह की वडियाई है। जिहड़ा गुरु रामदास पातशाह का सरोवर तुसीं रोज़ पढ़दे हो बाणी च, रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते, रामदास सरोवर नहाते सब लाथे पाप कमाते। हुण जिहड़े विरोधी ने ढड्डियां वाला महकमा वगैरह वो कहंदे उत्थे नहाउण दा फाड़ ही कोई नहीं, वो सरोवर का कोई मतलब नहीं, मंदिर का कोई मतलब नहीं। मैनू किसी का पता नहीं, मैं संगत बैठा मैं अपनी हट भी सुनावां। मैनू दमे का रोग सी। संत बाबा जरनैल सिंह जो पहला सन वो मेरे चाचा जी सन संत करतार सिंह। संत बाबा करतार सिंह ने मेरी बांह नारंगवाल संत बाबा जरनैल सिंह नूं फड़ाई जदों अजे विद्यार्थी सन। समय के नाल उन्होंने उस गल नूं चेते रखा, बड़ा प्यार करते बाबा जरनैल सिंह। सियाल का मौसम मैनू महीना नहीं चेते कि पोह सी या माघ सी, बड़ी धुंध पई ते अकाल तख्त ते सारे सिंघां नूं इकट्ठियां कीता। खाड़कू सिंह जिन्होंने आप आम तुसीं खाड़कू कहंदे हो, कहंदे गुरमुखो जे तुहाडे चों कोई किसी प्रकार फीम वगैरह खांदा ना, क्योंकि सिख नूं नशा खाण की आग्या नहीं। गुरु का सिख अमल प्रशादे का रखे, ये रहतनामे च लिखिया जे। पोस गुरु के सिखो, जेड़ी गुरु की बाणी ते गुरु का उपदेश है ना, ये मसाले वर्गा है, तुहानू नाम चंगा नहीं लगना। आ मैं कथा कर रहा ना तो झूठी जाते ने, जो कीर्तन कर लगे तो उदों होर चौं उठ जाने ने, ते जे इत्थे गाउण वाली आ गई तो इत्थे हो सकता बाहरले भी अंदर आ जाण। वो क्यों आउंदे ने? मैनू कई बंदे कहते भी ज्ञानी जिहड़े कवरां ते जाके ते गाउण वालियां लाउंदे ते चादरां ढाउंदे कौन? मैं कहा मस्से रंगड़ दे मासी दे पुੱਤ ने। मस्सा रंगड़ भी इहो ही काम करता सी ना, बेसवा नचाउण दा।
पर की करिए, बाणी सच्ची है। बाणी कहती अमृत कौड़ा विख्या मीठी सागत की बिद नैनो डिठी। ये मेरे बचन नहीं, गुरबाणी दे। अमृत कौड़ा विख्या मीठी सागत की बिद नैनो डिठी। कहते इनू अमृत कौड़ा लगता तो विखे इनू चंगे लगते हैं। गुरु रामदास पातशाह कहते जिवें घोड़ा अंदर मसाला नहीं ना लंघाउंदा ते जे लंघा लै तो वो मूँह चों पानी वग के तो वह रोग दूर हो जाता है। इस तरह गुरसिखो जिहड़ी गुरबाणी है ये मसाले वर्गी है। भावें जी करदा पढ़न नूं नहीं, भावें जी करदा पढ़ना, पर इनू अंदर लंघाई चलो। जदों गुरु की बाणी का अंदर मसाला चला गया, जिहड़े पापां ते विकारां दी पानी वो अंदरों बाहर हो जाएगा। पर होवेगा कदों? जदों गुरु की बाणी का मसाला अपने अंदर लगाओगे। उन्हें दूजी ये दलील दी है, जिवें एक मालक ने कुत्ता रखा तो किसी मौके वो रोटी पाउंदी तो किसी मौके नहीं पैंदी। पर जे मालक के दर से बैठा रहे ना तो मालक नूं फिक्र होंदा है कि आपां कुत्ता पालिया तो इन रोटी पाउणी है। इस तरह तुसीं वैगुरू दे कुत्ते बन के अपने जीवन नूं सफल करो, कदे ना कहता सुनी लैगा ना। उन्होंने उस मौके एक शब्द उचारिया, कहते कबीर केसो केसो कूकीए ना सोइए असार रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार आवाज़ां मारी चल आवाज़ां मारी चल कदे ना कहता सुनी लैगा ना। इस करके उस गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज के सिद्धांत नूं अपने जीवन का अंग बनाओ। एक गल कह के समाप्ति, बाबा श्री चंद जिहड़े धन गुरु नानक पातशाह के बड़े साहबजादे सन, वो जीवन पर्यंत गुरु अंगद साहब के कोल नहीं गए, मुखालफत करते रहे। धन गुरु अमरदास पातशाह के मौके उन्हें मुखालफत नहीं की, पर गुरु अमरदास पातशाह के कोल भी नहीं गए। जदों धन गुरु रामदास पातशाह की वडियाई सुनी, बाड़ साहब तो वो चल के आए तो गुरु रामदास पातशाह का दाड़ा बड़ा सुंदर ते लम्मा लिखिया इतिहास विच, बहुत सुंदर बड़ा लम्मा। तो गुरु रामदास पातशाह की परख करने वास्ते बाबा श्री चंद ने एक नुकता वरत्या। कहने लगे पुरखा तू दाड़ा बड़ा वधाया, किसी की दाड़ी नूं हत्थ पा लीए तो बंदा मारन तक जाता है, किसी की पग नूं हत्थ ला लीए तो बंदा मारन तक जाता है। तो गुरु रामदास पातशाह के सामने खलो के बाबा श्री चंद कहने लगे महापुरुषो तुहाडा दाड़ा बड़ा लम्मा है, बड़ा वधाया जे। तो धन गुरु रामदास पातशाह की निमरता की इंतहा, दाड़ा फड़ के कहने लगे तुहाडे वर्गे महापुरखों के चरण झाड़ ली। अजे इन्हां तां गल कही ना तो बाबा श्री चंद धर्म करके गुरु रामदास पातशाह के चरणों से डिग पिया तो गुरु रामदास पातशाह के चरण फड़ ले कहने लगा मैनू अज पता लगा असी खाली किवें रह गए, तुसीं भरे किवें। साडे च मान सी, असीं गुरु दे पुत्तर हां, तुहाडे च निमरता सी, ते जिथे निमरता ते होवे ना सारा कुछ निमान विच आ जांदा है। इस करके गुरु रामदास पातशाह मैनू भी अपने चरणों का दास समझ। तो गुरु रामदास पातशाह मज कहने लगे तो साडे गुरु के साहबजादे सानू आशीर्वाद दो, क्योंकि आदर करते हैं गुरु रामदास पातशाह। कहते तुसीं साडे गुरु नानक पातशाह के साहबजादे हो, साडे धन भाग तुसीं आए हो, जी आया नूं कोई ना कोई सानू सिक्ख्या दे के जाओ, कोई वचन कहो। तो बाबा श्री चंद कहने लगे मैं सिक्ख्या देण जोगा नहीं, सिक्ख्या की ड्यूटी तुहाडी है गुरु की, पर तुसां मैनूं कहा ना मैं कुछ ना कुछ कहां तो मैं ये कहांगा तुमरी महिमा अधिक है, मुझ ते कही ना जाए, तुमरे सर में जो मजे पापी पीगत पाए। मैं ये कहांगा सिक्ख्या तुसीं देनी है, रहम तुसीं करनी है, पर मैं गुरु घर दा दास होने करके तुसीं मैनूं कहा भी मैं कुछ कहां तो मैं ये कहांगा तुहाडी महिमा मैथों कही नहीं जाती, मेरी जबान छोटी। तुमरी महिमा अधिक है मुझ ते कही ना जाए, तुमरे सर में जो मजे पापी पीगत पाए। गुरु रामदास पातशाह जे मैनू पुछया ना तेरे सरोवर दे विच पापी भी आण के चुब्बा ला ले तो उहदे पाप धोते जाणगे। ये गल बाबा श्री चंद जी ने कही। तो इस करके ये नाल
गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बावन बाणी च गुरमुखो 31 राग ने। एक राग गुरु तेग बहादुर पातशाह कलिया ने उचारण किया जय जयवंती। बाकी 30 रागां दे विच धन गुरु रामदास पातशाह की बाणी है। 30 दे 30 राग और उन्हां दे बारे जेड़े गुरु घर के कीर्तनी सत्ता बलवंडा उन्हां भी कह दिता धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। पूरी हुई करामात आप सिरजणहारे धारिया। सिखी अते संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथाओ अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया। जिन्नी तू सेविया भाव कर से तुत पार उतारिया। जिन्हां ने भाव करके तेरी सेवा की तू उन्होंने बन्ने कर दिता है। इहो जे धन गुरु रामदास पातशाह ने तुसां उपराला किया धन गुरु रामदास पातशाह महाराज नूं चेते करन दा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह कृपा करन साडी सारियां दियां झोलियां भरन। ये गुरु के चरणों च अरदास बेनती है। भुल्लां चुकां दी माफ़ी। तो गुरु रामदास पातशाह ने एक गल कही मैं समाप्ति समय कह दियाँ। उन्हें आख्या सी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने परता गुरु नस्तारे। जिहड़े आपां कल्ला कही दसम पातशाह ने गद्दी दी नहीं नहीं 10 गुरुआं ने ही बाणी नूं गुरु मन्निया। पहले पातशाह दा शब्द है शब्द गुरु सुर तुम चेला। दूजे पातशाह के बारे साढ़े पट कहते हैं नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिवलाई। तां ते अंगत अंग संग भयो सैर तेन शब्द सुरत की नींव रखाई। ते गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं आवो सिख सदगुरु के प्यार हो गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। गुरु की बाणी नाल जुड़ो बंदियां की बाणी तो बचो। ये बेनती स्वीकार करनी गुरु का गुरु के संगतां दा धन्नवाद। भुल्लां चुकां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।